Assalamu alaikum, dear students. I'm going to start your chapter 5th, that is legislature at the center and state level. And in this chapter we have to discuss about Indian legislature at center level and at state level. Dear students, let me tell you one thing first. I told you earlier that in your previous chapters that in a government there are three organs: legislature, executive and judiciary. And so far as executive is concerned, we read about executive, we read about their powers, whether that is President of India or that is Prime Minister of India, about Council of Ministers or Governor. They all are executive. And another organ is legislature. Another organ is legislature. And in this chapter, we are going to discuss about it. So far as today's topic is concerned, that is, why does the Parliament of India have two houses? Why does the Parliament of India have two houses? Let me tell you one thing first. So far as Indian Parliament is concerned, it's comprising of two chambers or two houses. This is Indian Parliament. At top level, there is President of India, who is head of the state. And the two houses are Lok Sabha and Rajya Sabha. So far as Rajya Sabha is House of Representatives, and this is the permanent house. And the most powerful house is known as Lok Sabha, because our real head belongs to that very particular house, belongs to the majority party of Lok Sabha. This is the house of people. So remember this thing, in Indian Parliament there are two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Now the question is, now the topic is here, why does the Parliament of India have two houses? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो है, इन्होंने क्यों दो हाउसेज रखे? ये एक ही हाउस भी तो रख सकते थे, तो इन्होंने दो हाउसेज क्यों रखे हैं? हमें यही डिस्कस करना है इसमें. तो रीजंस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि why does India have two houses in parliament? The reason is India is a country with large size and diversity. The first point is India is a country with large size and diversity. देखिए बच्चों, याद रखिएगा, so far as our country is concerned, India is concerned, this is the second largest populated country throughout the whole world, comprising more than 130 crore population, not a joke. So it is not possible for such a large and vast country to make only single house. क्योंकि अगर एक ही हाउस होगा तो सारे के सारे जो भी यहाँ पे in spite of this large size, India is also a country where there is diversity. आपने यहाँ देखा होगा, India is a country which is multi-religious, multilingual, multicultural country. बहुत सारे different cultures, different ज़बानें, different मजहबों के लोग यहाँ पे रहते हैं. इनको accommodate भी करना है, इनको representation भी मिलनी चाहिए. इनको किसी तरीके से ये नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पे इस मुल्क में जो हमारे साथ सौतेला सलूक हो रहा है. सो इन सबको अकोमोडेट करने के लिए हिंदुस्तान ने तभी जाके दो हाउसेज रखे हैं. मे बी कि एक ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिले और दूसरे ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिले. जब हम दो हाउसेज रखेंगे तो ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे. तो इसी तरह से जितने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आएंगे, उतने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स अपने ग्रुप्स को, अपने रिलीजन को, इनफैक्ट अपने जियोग्राफिकल एरिया को टच करेंगे और उनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इट गिव्स एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जियोग्राफिकल यूनिट्स और पार्ट्स ऑफ द कंट्री. मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन है. जब हम पढ़ रहे थे इलेक्शंस के बारे में, तो मैंने आपको बताया था देयर इज डीलिमिटेशन कमीशन, जिनका काम हमारे यहाँ पे यही है कि टू डीलिमिट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया. यानी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हर एक जियोग्राफिकल एरिया को टच करना है, वहां पे उनको रिप्रेजेंटेशन देनी है. जब हमारे यहाँ पहले चुनाव हुए थे 1952 में, उस वक्त जो स्ट्रेंथ थी हमारे लोकसभा मेंबर्स की, दैट वाज 400 अबव. और प्रेजेंटली वी आर हैविंग नियर अबाउट 550 मेंबर्स इन लोकसभा. इसका मतलब है कि हर जियोग्राफिकल रीजन को टच किया जा रहा है, हर कंट्री के पार्ट को टच किया जा रहा है और उनको रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, ताकि वो अपने इलाकों को रिप्रेजेंट करे, वहां की प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में डिस्कस करे और सरकार कोशिश करेगी कि वहां उनकी प्रॉब्लम्स का कुछ न कुछ सोल्यूशन निकल आए. Then there is, it makes this possible to have every decision
कैसे लॉ बनती है, क्योंकि उसको बहुत सारे मराल से गुजरना पड़ता है। पहले दोनों हाउसेस में, पहले एक सभा लोकसभा में जाएगी या राज्यसभा में जाएगी, मनी बिल को छोड़ के कोई भी जो भी ऑर्डिनरी बिल है वो राज्यसभा में भी जा सकती है, लोकसभा में भी, किसी भी हाउस में। लेकिन सो फॉर एज मनी बिल्स आर कंसर्न दे मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो इसी तरह से उसके बाद दोनों हाउसेस की कंसेंट उसमें शामिल होनी चाहिए, फिर प्रेसिडेंट की वहां पे असेंट होनी चाहिए, तब जाके वो लॉ पास होता है। अब कभी कभार कोई हाउस जो है, दो में से जिसके पास भी बिल गई है, अगर उन्होंने बिल को पास किया है और दूसरे हाउस में फिर भेज देते हैं, तो दूसरा हाउस जो है वो वहां पे भी कमिटीज के थ्रू उस बिल पर डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि क्या पता इन लोगों ने जो ये बिल पास की है, क्या ये ठीक है या गलत है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह से दोनों हाउस में, अब अगर एक ही हाउस होता, वहां पे हाउस ने बिल को डिस्कस किया, पास किया, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पे एक चेक सा होता है, जो भी डिसीजन ये लोग ले लेते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, उसके बाद जब दूसरे हाउस में वो बिल जाती है पास करने के लिए, वो उस पर फिर से सोचते हैं कि क्या ये डिसीजन सही है या गलत है, क्या इस बिल को लॉ बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। So it makes this possible to have every decision reconsidered. Very important thing. Another point is it ensures a cross check on every bill. अभी मैं बात कर रही थी, it ensures a cross check. यानी दोनों हाउसेस, लोकसभा ने बिल पास की, उसके बाद राज्यसभा में गई, राज्यसभा इसको चेक कर लेती है अच्छी से कि क्या इसमें कहीं लूप होल्स तो नहीं है, कहीं कोई खामियां तो नहीं है। राज्यसभा में बिल पास होके आई लोकसभा के पास, तो ये हाउस इस पर अच्छे से चेक कर लेता है। So both are having they are having a cross check on every bill. That's why there are two houses. एक ही हाउस होता तो क्रॉस चेक होता नहीं, और क्रॉस चेक में बहुत सारी गलतियां निकल आती है। Last point is one house may take a decision in haste, but the other would keep a check on it. हो सकता है एक हाउस, दो में से कोई भी हाउस, जब भी बिल इनके पास जाएगी, डिसीजन जल्दी जल्दी ले लेंगे और बिल को पास कर लेंगे, एक एक्ट बनाएंगे, और कल को वो एक्ट जो है वो लोगों के लिए सही नहीं होगा, that will not come up to the expectations of the people, or people will go against that act because that will not be suitable for people. तो इस तरह से when they make this decision in haste, definitely there will be some loopholes and people will go against that act or that law. There are two houses because one may take a decision. अगर किसी ने decision लिया जल्दी में, तो दूसरा उसको चेक कर देगा कि अगर इन्होंने decision लिया, क्या सही लिया या गलत लिया। इसी वजह से हमने दो houses रखे हैं कि क्रॉस चेक हो, और जो भी decisions हो वो रिकंसिडर्ड हो, जो भी डिसीजन से ले ले, जल्दी में ना ले ले, अगर एक हाउस ने लिया भी तो दूसरा उसको चेक कर ले,